Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 3rd September 2022. और आज के कुछ न्यूज़ हैं वो फैक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कुछ न्यूज़ ऐसे हैं which is a build up of what we were doing from past few days, ठीक है ना, especially related to Russia-Ukraine crisis. And then we have some important editorial also for today. आज एक editorial है. It is about nuclear non-proliferation treaty. This is a very important topic going on across the world. We are in the midst of Iran nuclear deal से भी चल रहा है. Zaporizhzhia nuclear power plant which is under Russia occupation, that is also going on, where recently the IAEA team, that is International Atomic Energy Agency's team, is visiting the nuclear power plant facility in Ukraine to see that it does not get damaged. There should be no nuclear accident following the Russia-Ukraine war in Zaporizhzhia, which is the largest nuclear plant in Europe. Fine. So these topics become very important. उसमें factual information, उस editorial में factual information भी बहुत ज़्यादा है. That's why it is important. Then on sports, we are going to look the new president who has been elected for All India Football Federation. All India Football Federation के बारे में हमने देखा था कि it was suspended by FIFA. Then because of third party interference, a third party क्या था, that is committee of administrator which was appointed by Supreme Court to manage the day to day affairs of All India Football Federation. तो जब सस्पेंशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का जो फंक्शन था उसको एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल के हाथ में दे दिया. एंड नाउ देन फीफा अपलिफ्टेड द सैंक्शन. और उसके बाद जो अंडर 17 वुमेंस फुटबॉल कप है वो होने वाला है इंडिया में अक्टूबर में. And now a new president has been elected. So we are going to see all those important news. So let's start from the front page, picking up. Then the first is SC grants interim bail to Tishta till Gujarat High Court takes up petition. तो ये न्यूज़ हमने डिटेल में कल भी किया था, ठीक है, कि इनको इंटरिम बेल नहीं मिला था. उसके बाद 2 महीने से ये जेल में हैं. इनको बेल नहीं दिया गया और गुजरात हाई कोर्ट ने जो लिस्टिंग भी की वो काफ़ी बाद में की. तो ये सारा कुछ हाईलाइट हो गया था सुप्रीम कोर्ट में. सो नाउ सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें की हैं. पहले तो इनको इंटरिम बेल दे दिया है, फर्स्ट थिंग. सेकंड कि जो इनका बेल पिटीशन जो गुजरात हाई कोर्ट में है, जब तक गुजरात हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करती है इनकी पेंडिंग एप्लीकेशन रेगुलर बेल की, तब तक इनको सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिला हुआ है, ठीक है. सो शी वॉज अरेस्टेड ऑन June 25 बाय गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड फ्रॉम मुंबई on June 25. तो अगर आप देखेंगे 2 महीने के ऊपर हो चुका है. सो नाउ शी हैज़ बीन गिवन द बेल. नाउ नेक्स्ट, अभी इस न्यूज़ को बस आप देख लीजिए. ऐसे न्यूज़ जो होते हैं वो समझ लीजिए कि अब सीधा डेवलप होंगे. जब ये मीटिंग हो जाएगी, क्वाड के सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग जब अगली वीक हो जाएगी तब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा. बट अभी के लिए इसको देख लीजिए और दिमाग में रखिए इसको. That India is going to host Quad senior officials meeting next week. So New Delhi is going to host an official level meeting of Quad grouping with US or Japan and Australia. Okay, that is called as senior officers meeting. Fine. Now this meeting is being held since the recent escalation of tension over the Taiwan Strait. Fine. So over here, if you will just see that the meeting is going to be held in 5 and 6 September. So it is India's Indo-Pacific partners in the week. This is the balancing move ahead of Shanghai Cooperation Organization Summit in Uzbekistan in mid-September. So Prime Minister Narendra Modi, he is going to participate in the Shanghai Cooperation Organization Summit which will be held in Samarkand in Uzbekistan. Okay. और जो SCO Summit है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो SCO Summit में कौन कौन से लीडर्स आएंगे? रशिया के, चाइना के, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईरान. ओके, चलो इसके बाद जब ये मीटिंग हो जाएगा तो उसके बाद देयर विल बी इंडिया US 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग. सो इट विल बी विद द US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू. फाइन. एंड हियर सीनियर काउंटर पार्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, डेप्यूटी सेक्रेटरी जस्टिन हैहर्स्ट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन पुलिस ब्यूरो इन जापान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स Kichi Ichakawa. They all will be present in the क्वाड समिट. तो क्वाड का जो समिट हुआ था वो हुआ था टोक्यो में, ठीक है ना. ये समिट नहीं है, ये सिर्फ एक मीटिंग है, ठीक. समिट जो हुआ था वो क्वाड समिट टोक्यो में हुआ था.
Now the next and the most important news for today is induction of INS Vikrant. So INS Vikrant, it was inducted on 2nd September. दो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए यहाँ पे, एक तो INS विक्रांत के बारे में और नेवी का जो नया एनसाइन है उसके बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकता है, आपको कहीं भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो INS विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो INS विक्रांत है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। पर इसके पहले भी हमारे पास एक INS विक्रांत था, ठीक है ना। तो दैट INS विक्रांत, इंडिया बॉट दिस INS विक्रांत इन 1957 फ्रॉम UK, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, 1957 में। फिर ये इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया 1961 में, ठीक, 1961 में ये कमीशन हुआ। उसके बाद ये डी कमीशन कब हुआ? ये डी कमीशन हुआ लगभग 35 साल बाद, दैट इज इन 1997। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ INS विक्रांत, द अर्लियर INS विक्रांत विच प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर 1971, ठीक है। तो ये रहा आपका INS विक्रांत जो पहले वाला था। 1957 में ये इंडक्ट हुआ, इसको इंडिया ने खरीदा UK से। 1961 में जो है ये इंडक्ट हुआ इंडियन नेवी में और 1997 में डी कमीशन हुआ, ठीक है। नाउ दिस INS विक्रांत, ठीक है ना। सो दिस, इसका जो पुराना नाम था, इट वाज मैजेस्टिक क्लास। शिप का ना क्लास होता है, तो जैसे ये है, दिस इज मैजेस्टिक क्लास, ठीक है ना, मैजेस्टिक क्लास HMS हैरमर, ये इसका पुराना नाम था जब ये ब्रिटिश का शिप हुआ करता था। और जब इंडिया में आया तो इट बिकेम INS विक्रांत, ठीक है। नाउ अब ये जो INS विक्रांत है ये तो डीकमीशन हो गया। अब जो नया INS विक्रांत है वो इंडिया ने खुद बनाया है। किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। सो इट इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी जो कील पड़ी थी, जो आप कह सकते हो फाउंडेशन की, नाउ द शिप बिल्डिंग विल स्टार्ट, इसको कील ऑफ द शिप कहते हैं। That was laid in February 2019। फिर 2004 साल के बाद द शिप वॉज लॉन्च फर्स्ट टाइम इन दी वाटर। उसके बाद नवंबर 2020 में इसका बेसिन ट्रायल कंप्लीट हुआ। जुलाई 2022 में इसका सी ट्रायल्स कंप्लीट हुआ। जुलाई 2022 में इसकी डिलीवरी हो गई। अब सितंबर में इसकी कमीशनिंग हो गई। अब हम इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। लेंथ ऑफ द शिप कितना है? 262.5 मीटर विच इज़ मोर देन द साइज ऑफ 2 फुटबॉल फील्ड्स। हाइट इसकी कितनी है? कील से लेके मास्ट तक, ऊपर तक, तो इट इज़ 61.6 मीटर, अराउंड 18 स्टोरीज। विड्थ इसकी कितनी है? 61.6 मीटर। फ्लाइट डेक एरिया 12,500 स्क्वायर मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज़ 42,800, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसका एक चीज़ देखेंगे, और भी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर टोटल क्रू जो है वो 1600 होंगे, कंपार्टमेंट्स 2300 होगा। मैक्सिमम स्पीड विच इट कैन अचीव इज 28 नॉट्स। और जो क्रूजिंग स्पीड होगा ये इसका, मतलब जो नॉर्मल स्पीड्स होंगे दैट विल बी 18 नॉट्स। इसका जो एंडुरेंस है 7500 नॉटिकल माइल्स है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एंडुरेंस? एंडुरेंस का मतलब बिना रिफ्यूलिंग किए इट कैन गो फॉर 7500 नॉटिकल माइल्स। तो इट मीन्स इट कैन गो फ्रॉम कोच्चि टू ब्राज़ील विदाउट रिफ्यूलिंग। उसके बाद देयर विल बी 30 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स विच इंक्लूड्स MiG-29 के कैमो MS-60R हेलीकॉप्टर्स। देन इट कैन ऑल्सो हैव मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, फुली फंक्शनल हॉस्पिटल विद CT स्कैन मशीन एंड 2 ऑपरेशन थिएटर्स, ठीक। So this is all about INS विक्रांत. Now Navy is considering 2 ships for this INS विक्रांत. तो ये 2 शिप कौन कौन से हैं? एक तो दसॉल्ट एविएशन का राफेल M, ठीक है ना, सॉरी 2 एयरक्राफ्ट, फाइन। एक तो है राफेल M और एक है F-18 फाइटर्स, ठीक है। दिस आर द 2 शिप्स विच इंडिया इज कंसिडरिंग फॉर INS विक्रांत। अब INS विक्रांत तो हो गया। अब हम आते हैं 2 और शिप्स है जिसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। एक तो है INS विक्रमादित्य। सो INS विक्रमादित्य, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो वन इज INS विक्रमादित्य। तो दिस इज ऑल्सो एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, जो इंडिया ने 2013 में रशिया से खरीदा,
कौन से कंट्री से? रशिया से। ठीक, फाइन। नाउ इफ यू विल जस्ट सी, एक इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर और था जो 1987 में इंडिया ने अगेन ब्रिटेन से लिया था। दैट वाज कॉल्ड एज INS विराट। दैट वाज कॉल्ड एज INS विराट। फाइन। तो INS विराट को कमीशन किया गया था 1987 में और इसको डीकमीशन किया गया था 2017 में। ओके, सो INS विराट। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो बिटवीन 2013 एंड 2017 इंडिया हैड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दैट इज INS विराट एंड INS विक्रमादित्य। बट after 2017 there was only 1 aircraft carrier, that is INS Vikramaditya. Now India again will have 2 aircraft carrier, that is INS Vikramaditya and INS Vikrant. Okay. अभी जो INS विराट है, अगर आपसे पूछे तो कौन से कंट्री से ये लिया गया था, तो ये लिया गया था यूके से और इट इज सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। सेंटोर, CENTAUR, सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। फाइन, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन इंडिया। हम एडिटोरियल पे आते हैं, तब तक हम कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं विच आर इम्पोर्टेंट। चलो, नाउ लेट्स कम टू नेवीज एनसाइन पेज ट्रिब्यूट टू शिवाजी। तो नेवी एनसाइन ने, नेवी का जो अपना कह सकते हो कि एनसाइन जो है वो चेंज हुआ है, चौथी बार चेंज हुआ है सिंस 1950। ठीक है ना। तो पहले जो हमारा एनसाइन था इट वाज बेस्ड ऑन जॉर्ज क्रॉस। ठीक है ना, उसको कहते हैं जॉर्ज क्रॉस। तो इस जॉर्ज क्रॉस का मतलब कि कल आप पहले अगर इंडियन नेवी का एनसाइन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा कि देयर विल बी अ क्रॉस। ये जो लेफ्ट कैंटन होता है, ठीक है ना, इसको लेफ्ट कैंटन कहते हैं। यहाँ पे इंडियन फ्लैग होगा, ठीक, और यहाँ बीच में नेशनल एम्बलम था, हमारा नेशनल एम्बलम था। सो आज़ादी के पहले यहाँ पे नेशनल फ्लैग की जगह पे यूनियन जैक हुआ करता था। यूनियन जैक, इट इज़ द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इसको कहते हैं यूनियन जैक। फाइन। तो यूनियन जैक आज़ादी के बाद यूनियन जैक वाज रिप्लेस्ड बाय इंडियन फ्लैग। ओके, नेशनल एम्बलम वैसे ही था बट इट वाज बेस्ड ऑन जॉर्ज क्रॉस। ठीक है ना। फाइन। अब अगर आप देखेंगे ये जो जॉर्ज क्रॉस है, ये जो है ना, ये इट इज़ रिलेटेड विद क्रूसेड्स। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट क्रूसेड। इट वाज अ रिलीजियस फाइट बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्रूसेड्स। फाइन। सो इट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम दैट जॉर्ज क्रॉस। बट अब उसको इंडियन नेवी ने गिव अप कर दिया है। अब जो हमारे पास जो नया इंसिग्निया है इंडियन नेवी का, एज यू कैन सी कि लेफ्ट कैंटन, लेफ्ट साइड के टॉप पे इंडियन फ्लैग इज स्टिल देयर, बट यहाँ पे जो है आप एक ऑक्टागोनल शेप पाएंगे अब। ठीक है ना, ऑक्टागोनल शेप आप पाएंगे विच इज़ द सील ऑफ शिवाजी इन नेवी। शिवाजी ने भी अपना एक नेवल फोर्स तैयार किया था जब उन्होंने मराठा एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। ओके, कान्होजी आंग्रे, ही इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड नेवल कमांडर। ठीक है ना। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप बहुत सारे इंडियन नेवी के जो ऑफिस हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो शिवाजी या उनके नेवल जो उनके पावर थी उससे रिलेटेड पाएंगे। ओ फाइन। तो ये जो ऑक्टोगोनल शेप है, ऑक्टोगोनल शेप, ओके, एंड इट इज़ डबल लाइंड गोल्डन बॉर्डर। ठीक है ना। तो दिस इज द सील विच, ये जो ऑक्टोगोनल शेप है, इट वाज द सील, इट वाज अडॉप्टेड बाय शिवाजी व्हेन ही बिकेम द किंग, Maratha king, when he was coronated. So he adopted this octagonal shape. So this octagonal shape actually it represents the 8 direction of mobility for Indian Navy. And then you have this our national emblem in golden color and then anchorage. ठीक है ना, एंकर है। फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसके ऊपर जो है, इफ यू विल जस्ट सी दैट मोटो भी लिखा हुआ है इंडियन नेवी का उसके ऊपर, दैट इज सामनो वरुणा। ओके, इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन गोल्डन देवनागरी स्क्रिप्ट। फाइन। So you have the octagon with twin golden octagonal borders encompassing the national emblem. Fine. Inscribed with Satyameva Jayate in blue Devanagari script, and it is resting atop an anchor. मतलब जो आपका ये जो लायन कैपिटल है, ठीक है ना,
नेशनल एम्बलम है. इट इज रेस्टिंग ऑन एंकर and it is superimposed on a shield. Fine. And below the shield within the octagon is a golden border ribbon on a navy blue background and is inscribed with Indian Navy's motto. Chalo. Now coming to the G7 news from foreign page. G7 agrees to implement price cap on Russian oil. So over here if you will just see the group of 7 countries, okay, इनका recently जो था 48 G7 summit, it was held in Bavaria in Germany. Now these G7 countries, they have decided to implement a price cap on oil exports from Russia. So the goal is to cut the profit which Russia is generating by selling the oils, okay, and which is considered as that it is aimed at cutting the source of finance for Russia as it is continuing war with Ukraine. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो इनका पूरा कैसे काम करेगा, तो लंदन जो है वो एक मेजर ग्लोबल सेंटर है फॉर मैरीटाइम इंश्योरेंस. तो प्लान क्या है कि जो भी रशियन ऑयल कैरी कर रहा होगा, जो भी शिप, ठीक है ना, अबव सर्टन प्राइस कैप, दे विल बी डिनाइड दिस इंश्योरेंस. ओके. और ये जो मूव है पूरा का पूरा, नाउ से इट इज एम टू अलाइन द टाइमिंग ऑफ द प्राइस कैप विद EU बैन ऑन सी बोर्न इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल. तो EU ने पहले से अपना प्लान अनाउंस किया है कि दैट इट विल बैन द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया फ्रॉम December 5 and petroleum products embargo from February 5 coming year. The next is Russian gas pipeline to Germany will stay shut. So Russia has said that Gazprom, it is the oil company of Russia, so it has said that due to some maintenance activities they are not able to supply gas to Germany. Next is from sports. So from sports, Kalyan Chaubey to take over as AIFF president. So he has defeated Bhutia by 33-1 and he has become the AIFF president, Kalyan Chaubey. उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए दैट ही इज़ फॉर्मर ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान गोलकीपर. ये दोनों इंडिया की फुटबॉल क्लब्स हैं, ईस्ट बंगाल फुट क्लब एंड मोहन बगान football club, and he has become the first player turned president in AIFF's 85-year-old history. Okay. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप कुछ और भी नोट कर लीजिए. जो ट्रेजरर हैं जो अपॉइंट हुए हैं, ही इज अजय कीपा एंड वाइस प्रेसिडेंट इज NA हरीश. Yeah, there is one more from economy, one important appointment, that is Starbucks names Lakshman Narasimhan as next CEO. So Starbucks has named long-time PepsiCo executive as its new CEO. Who is the new CEO of Starbucks? And the answer will be Lakshman Narasimhan. So earlier he was with PepsiCo, but now he will be with Starbucks. Chalo. Now friends, let's focus on this. NPT is beginning to look shaky. So here we are talking about the Nuclear Non-Proliferation Treaty. It is a treaty with 3 objectives, that non-proliferation of nuclear weapons, peaceful use of nuclear energy, okay, and controlling the spread of nuclear energy. ठीक है ना. तो NPT क्या करता है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये सिर्फ 5 मेंबर्स को ही मानता है कि दैट दे आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट, सिर्फ 5 कंट्रीज को. Those 5 countries are P5 countries, that is USA, UK, France, रशिया एंड चाइना. ठीक है ना. उसके बाद NPT के सिग्नेटरीज बहुत सारे कंट्रीज हैं. तो उसमें से जो न्यूक्लियर वेपन है वो सिर्फ 5 लोगों के पास है. बाकी जो हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर नॉन वेपन स्टेट्स, बट दे आर स्टिल द मेंबर्स ऑफ NPT, दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. फाइन. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ. इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया, साउथ सुडान हो गया, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. नॉर्थ कोरिया, it was earlier the member of Non-Proliferation Treaty, but it withdrew from NPT in 2003. ठीक है. अब आप देखेंगे कि जो NPT है, it came into force, okay, in 1970s,
and the goal was to spread the to control the further spread of nuclear weapons. Fine, committing to negotiate reduction of nuclear arsenals, कि जो भी न्यूक्लियर आर्सनल्स है जो इन 5 कंट्रियों ने बनाया है उसको रिड्यूस भी करना है. फाइन, एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फाइन, तो इसमें से जो पहला है, तो अब क्या होगा कि अब अगर आप एनपीटी का मेंबरशिप देखोगे तो एनपीटी का मेंबरशिप भी अब 2 टाइप से हो गया. एक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दैट इज हैव्स. एक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, दैट इज हैव नॉट्स. दैट इज हैव नॉट्स. ठीक, अब इस डिस्टिंक्शन को आप दिमाग में लेके चलिए. अब क्या हो गया है कि जो हैव्स हैं वो पहले ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग द फर्दर स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बियॉन्ड द P5 कंट्रीज. की मतलब हम 5 के अलावा किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसीलिए इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को. ठीक है, उसके बाद द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज डिसआर्मामेंट. ठीक है ना, जो सेकेंड है डिसआर्मामेंट. डिसआर्मामेंट का मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं उनको भी एलिमिनेट करो. थर्ड इज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक, तो ये जो हैव्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करते हैं, दूसरे पे फोकस नहीं करते, क्योंकि बहुत सेकेंड थिंग इज टेलिंग दैट दिस 5 मेंबर्स हु हैव न्यूक्लियर वेपन्स दे शुड रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट द न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम द अर्थ. ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. एक और नाम है इसमें साउथ सूडान. साउथ अफ्रीका जो था एक डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन बट द apartheid regime destroyed them and joined NPT in 1991. Fine. Now see, अब हम आगे चलते हैं तो हम कहेंगे कि देयर इज यहाँ पे मेन जो बात होती है वो 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, यूएस और रशिया के बीच में. तो आर्म्स कंट्रोल टॉक्स बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर डिड टेक प्लेस. ओके, and these 2 countries have succeeded in bringing down their arsenal nuclear weapon from 65,000 to 12,000 warheads. बट अब ये थोड़ा सा शेकी हो रहा है. कैसे, देखो, सबसे पहले यूएस ने अनाउंस किया विड्रॉवल फ्रॉम 1972 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी इन 2002. फाइन, उसके बाद 2019 में यूएस ने नोटिफाई किया रशिया को that is going to quit 1987 इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी. फाइन, तो ये जो ट्रीटी था इसने एक रेंज रखा था कि दैट दे हैव टू एलिमिनेट ऑल ग्राउंड लॉन्च मिसाइल विद इन द रेंज ऑफ 5,000 to 500 to 5,500 किलोमीटर. ठीक है ना, तो यूएस ने ब्लेम किया कि रशिया इसको फॉलो नहीं कर रहा है. ओके, सो इट नोटिफाइड रशिया दैट इज विदड्रॉइंग फ्रॉम इट. अब जो ओनली सर्वाइविंग ट्रीटी है दैट इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड यूएस. ठीक है ना, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज पुटिंग अ सीलिंग ऑन ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ 700 लॉन्चर्स एंड 1,550 वॉरहेड्स. सो इट इज गोइंग टू एक्सपायर इन 2026. अब उसके आगे क्या होगा, वी जस्ट डोंट नो कि उसके आगे कौन सी ट्रीटी बचती है विच इज गोइंग टू वर्क फॉर डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन. ओके, उसके बाद नाउ रशिया और चाइना या हम यूएस की बात करें, सो दे आर नाउ modernizing their nuclear arsenals also. यहाँ तक कि रशिया एंड चाइना दे आर डेवलपिंग हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम दैट इवेट्स मिसाइल डिफेंस. ठीक है ना, एज वेल एज लार्जर मिसाइल्स दैट डू नॉट नीड टू ट्रैवल ओवर द आर्कटिक रीजन. फाइन, उसके बाद अगर चाइना की बात करें, सो चाइना इट इज़ ऑन ट्रैक टू एक्सपांड इट्स आर्सेनल फ्रॉम करंट लेवल्स ऑफ 350 वॉरहेड्स टू 1,000 बाई 2030. फाइन, सो वी आर सीइंग कि ये जो एनपीटी का जो ऑब्जेक्टिव था डिसआर्मामेंट वो अभी तक ठीक से परस्यू नहीं हुआ है. तो उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में जो न्यूक्लियर हैव नॉट्स थे, एनपीटी के वो मेंबर्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, दे केम आउट विद अ ट्रीटी विच इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैन ट्रीटी इन 2017 and which has entered into force in January 2021. अब इसके सिग्नेटरीज कौन है? There are 86 signatories who does not have nuclear weapons but they are party to NPT. Abhi, what is the job of this TPNW, that is Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons? So it is a new legal instrument, okay,
which aims for stigmatizing and delegitimizing the nuclear weapons, and it condemns all nuclear threats and building a robust global preemptory norm against them. फाइन. उसके बाद कुछ ट्रीटीज ऐसे भी हैं जो फाइनलाइज तो हुए बट इफेक्ट में नहीं आए, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. सो इट वाज कंक्लूडेड इन 1996 but could not enter into force because US and China stayed out of it. Okay. So friends, that's all for today. We will meet next week with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.